Hello, Jay Chams. So, in today's session, I'm going to talk about Bend's rule, which we study in chemical bonding. See, Bend's rule in chemistry basically describes and explains the relationship between the orbital hybridization of central atom in molecules and the electronegativities of the substituents. Whenever we talk about Bend's rule, we majorly talk for sp3d hybridization. Okay, what does it states basically? It states that more electronegative element prefers to stay at axial position. More electronegative element prefers to stay at axial position, whereas lone pairs, they prefer to stay at equatorial positions. Fine. See, when we talk about sp3d hybridization, we majorly are talking about trigonal bipyramidal geometry. Okay. In case, if I take the example PF3Cl2. Okay. So, this PF3Cl2 do have trigonal bipyramidal geometry. Fine. So, if I just draw the structure, tell me which particular structure will be the right structure. It's F, Cl and Cl, and the next one is Cl, F and F. So can you tell me which among these two trigonal bipyramidal geometry for PF3Cl2 is the correct one? I'll say this one is the correct one. What's the main basic reason behind it? Let us actually talk about the same. So when we talk about sp3d hybridization, if I just split it into two parts, I'll just say it's sp2 plus pd. So this sp2, I mean to say sp3d, from this sp3d hybridization, we are supposed to get 5 hybrid orbitals. I've split it into sp2 and pd. So sp2, it actually have 3 sp2 hybridized orbital, and over here for pd we are having 2 hybridized orbital. Fine, that's absolutely right. Now, if I talk about sp2, so it do have percentage S character, whereas in case of pd, if I talk about, it has 0% S character. Okay, so if I just talk for the structure of sp2 hybrid orbital, we obviously go by this particular way. sp2 hybrid orbitals, we actually draw it like this, and it do have percentage S character. Okay, and if I talk about pd, let's actually make pd over here, which has been there. So this is pd, this is sp2, this is sp2, this is pd, and this is sp2. So in pd we have 0% S character. In PD, we have 0% S character, which is at axial position. When I talk about sp2, it do have percentage S character. तो कहने का मतलब ये है कि इक्वेटोरियल पे सारा हमारा S character आ गया है. अगर हमारा percentage S character सारा इक्वेटोरियल पोजीशन पे आ गया है, तो हम ये कहेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की, बिकॉज परसेंटेज एस कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. अगर यहाँ 0% एस कैरेक्टर है तो यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी कम होगी इन कंपैरिजन टू sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स. ठीक है, सो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हमारे इक्वेटोरियल पोजीशन पे है, और जो pd ऑर्बिटल्स हैं दे आर एट द एक्सियल पोजीशन. क्यों है उसका रीजन जानते हैं. तो यहाँ पर अगर मैं बात करना चाहूँ रिगार्डिंग द pd ऑर्बिटल्स विच आर एट द एक्सियल पोजीशन, सिंस मैंने बोला इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ कम है, तो यहाँ अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है कहाँ pd ऑर्बिटल्स में, जहाँ वेयर दे आर प्लेस्ड एट एक्सियल पोजीशंस, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्स्टिट्यूएंट क्या चाहेगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्स्टिट्यूएंट कहाँ जाएगा. बेसिकली वो वहां पर जाएगा जहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, एज उसकी खुद की भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है. सो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट प्रिफर्स टू स्टे एट एक्सियल पोजीशन, वेयर एज लोन पेयर्स दे प्रिफर्स टू स्टे एट इक्वेटोरियल पोजीशन.
एक्सियल पोजीशन पे हमने देखा, जहां हम पीडी ऑर्बिटल्स के बारे में बात कर रहे थे, वहां 0% एस कैरेक्टर है, तो हमारा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव जो एलिमेंट होगा वो कहां जाएगा, वो वहां पर जाएगा जहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, क्योंकि उसकी खुद की भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। ठीक है, सो जिस हाइब्रिड ऑर्बिटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है वहां आएगा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ओके, अब मैं बात करती हूं आप लोगों से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बारे में, या फिर कहिए लोन पेयर्स के बारे में। तो जो लोन पेयर्स, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट मैंने बोला इक्विटोरियल पोजीशन पे होंगे, इवन लोन पेयर्स भी कहां होंगे, इक्विटोरियल पोजीशन पे होंगे। तो बात करते हैं लोन पेयर्स की। जो लोन पेयर होता है, न्यूक्लियस उसको अट्रैक्ट करना चाहेगा, न्यूक्लियस उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहेगा, तो लोन पेयर जाएगा इक्विटोरियल पोजीशन पे। अब सुनिएगा, पीडी मैंने बोला एक्सियल पे है, परसेंटेज एस कैरेक्टर 0 है, easier for terminal electronegative atom to attract the electron and electronegative atom it prefers to stay at axial position। ये बात आपको समझ में आ गई थी। Why are lone pairs at equatorial position? अब बताइए, इक्विटोरियल पोजीशन पे वी आर हैविंग sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, परसेंटेज s कैरेक्टर वहां ज्यादा है, s ऑर्बिटल न्यूक्लियस के काफी ज्यादा पास में रहते हैं। सो लोन पेयर्स जो हैं दे गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स न्यूक्लियाई ऑफ द एटम, s ऑर्बिटल दे आर क्लोजेस्ट टू द न्यूक्लियस। सो लोन पेयर्स जो होते हैं दे प्रेफर टू स्टे इन ऑर्बिटल्स व्हिच हैव मोर परसेंट s कैरेक्टर एज दे आर अट्रैक्टेड बाय द न्यूक्लियाई ऑफ द एटम। ठीक है, क्लियर है। तो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में परसेंटेज s कैरेक्टर ज्यादा है, s ऑर्बिटल क्लोज होते हैं न्यूक्लियाई के, और लोन पेयर जो होते हैं दे आर अट्रैक्टेड बाय द न्यूक्लियाई ऑफ द एटम। इसीलिए लोन पेयर्स जो होते हैं दे एक्चुअली एक्वायर द इक्विटोरियल पोजीशन। अब देखो यहां पर इन ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री इक्विटोरियल पोजीशन पे what we are going to find out, there is higher percentage of s character and it is occupied by lone pair or you can say multiple bond. In trigonal bipyramidal geometry, axial position pe we do have low percentage s character, so that has been occupied by more electronegative element. तो यहाँ पर since initially जब मैं बात कर रही थी examples की PF2Cl3 के बारे में, देखो इट्स PF2Cl3, तो फ्लोरीन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वो कहाँ एक्चुअल में आएगा, इट विल बी अटेनिंग द एक्सियल पोजीशंस, एंड क्लोरीन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सो दे विल बी एक्चुअली एट द इक्विटोरियल पोजीशन। फाइन, अगर मैं बात करूं एक क्वेश्चन की, यू नीड टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग, तो बात करते हैं XeOF2 के बारे में। XeOF2 के बारे में बात करें तो इसका भी जो ज्योमेट्री है इट्स ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री है कि नहीं? यस मैम। सो देखिए जीनॉन है, इट्स डबल बॉन्ड O ओवर है, वी डू हैव टू लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच इज गोइंग टू एक्वायर द इक्विटोरियल पोजीशन, और फ्लोरीन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वो एक्सियल पोजीशंस को एक्वायर करेंगे। ऐसे ही ClF3 के केस में देखा जाए तो Cl है ये मेरा, दैट्स एब्सोल्युटली राइट। 2 फ्लोरीन एटम्स हमारे होंगे एक्सियल पोजीशन पे, 1 फ्लोरीन एटम होगा इक्विटोरियल पोजीशन पे, और ये देखिए ये आ गए हमारे 2 लोन पेयर्स। क्लियर है? यस मैम। PF3Cl2 इनिशियली मैं बता चुकी हूँ, ठीक है। सो PF3, सो 2 फ्लोरीन हमारे एक्सियल पोजीशन पे होंगे, 1 फ्लोरीन इक्विटोरियल पे, और 2 क्लोरीन होंगे इक्विटोरियल पोजीशन पे। सो दीज आर द स्ट्रक्चर्स ऑफ XeOF2, ClF3 एंड PF3Cl2। होप दिस पर्टिकुलर थिंग्स मेक्स वेरी क्लियर टू यू अबाउट द ज्योमेट्री, अबाउट द शेप, if we are talking about trigonal bipyramidal geometries. And this is what is all about Bend's rule.